him is theorizing national discourse through the ethical journalism, and he's doing that. I'll happy to introduce Dr. Hitesh Sankarji. Hitesh is a media professional and started his journey at very young age. He have rich experience of more than 2 decades in mainstream media. His experience of working with esteemed media houses like India Today, Dainik Jagran, Hindustan, and Times Media Limited. As media educationist, he has given many lectures and participated as expert in various national international workshop, seminar for media student and professionals. Presently, member of various national level government committee for center policy, academics, and Indian language promotion. He is theorizing national discourse through the ethical journalism that is in need of the hour when the fake news has become very common. So I'm sure that the role of ethical news and role of nationalism and bringing nationalism back to mainstream education is the biggest challenge, and ITSG is doing the great work, and I'm very much thankful to him for being partner of this program. So I request ITSG, please speak. Thank you, Virendra Rawat ji. Yes, sir. Thank you for providing me such a wonderful platform to interact with future generation of India. Yes. Thank you, Green Mentors. And uh, the topic which is given to me is theorizing national discourse mm, through ethical journalism. So, as a journalist, you are always inquisitive, and there also a question popped up in my mind that when you say ethical journalism, what it means, the set of word itself is an oxymoron, if you say. Can you even imagine unethical journalism? So, along with this, I would also like to add something that the Panchajanya is the oldest Hindi weekly of the nation, and which was established and firstly edited by none else but our beloved late Prime Minister Mr. Atal Bihari Vajpayee, the leader, the poet, the champion of Hindi cause, the one who chose Hindi over English even in UN. So I would like to speak in Hindi because not because the language is barrier, but because it is a rich heritage, like legacy I belong to. So uh, धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद. और जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय विमर्श को पत्रकारिता के माध्यम से गढ़ने की, आगे बढ़ने की, तो बहुत सारे सवाल इसके साथ जुड़े हुए आते हैं. और बहुत सारे बच्चे हैं, तो उन बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, टीचर्स हैं, टीचर्स को ये बात कहना चाहूंगा कि बच्चों को क्लासरूम में जरूर बताएं कि भारत कई मामलों में अनूठा देश है, और इस मामले में भी अनूठा देश है कि दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं मिलेगा जिसको इतने सारे राष्ट्र नायक उसकी पत्रकारिता ने दी हो. महात्मा गांधी हो, मालवीय जी हो, बाल गंगाधर तिलक हो, बाबा साहब आम्बेडकर हो, डॉक्टर हेडगेवार हो, ये सभी लोग अपने जीवन में उन्होंने एकाधिक पत्र निकाले और समाज में चेतना का एक अलख जगाने का माध्यम, मीडिया क्या है, माध्यम ही है, तो राष्ट्रीय चेतना का माध्यम इस तौर पर मीडिया को उन्होंने स्थापित किया. तो जब हम बात करते हैं पत्रकारिता की, तो हमें भारतीय पत्रकारिता के इस डीएनए को भी समझना चाहिए, उसके गुणसूत्र को भी समझना चाहिए, और अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ी है तो उस गड़बड़ी को भी पकड़ना चाहिए. वो समझ में तभी आएगी जब हमें उसका मूल स्वभाव पता है. और खास तौर से यदि देखें तो भारत की आजादी के समय जो पत्रकारिता का अभियान, आंदोलन ये शुरू हुआ, उस समय इसके केंद्र में, इसके बीज में राष्ट्र प्रेम ये इसका मूल तत्व था. मगर आज हम देखते हैं वंदे मातरम किया जाए ना किया जाए, ऐसे प्रश्नों को अगर मीडिया उठाता है तो मुझे लगता है कि वो अपनी धुरी, अपनी लिंचपिन उससे विमुख हो गया, ऐसा दिखाई देता है. एक बार में, एक पल में, एक क्षण में किसी एक घटना से ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है. परंतु लगातार जब एक सवाल आया देश की आजादी मिलने तक, तो ये सवाल था कि पत्रकारिता का काम है देश को आजादी दिलाना. दूसरा प्रश्न ये आया
कि जब आजादी मिल गई है तो अब पत्रकारिता का काम क्या बचा है। उस समय कुछ लोगों ने सोचा कि नहीं, पत्रकारिता इससे आगे की चीज है। और सरकार बदलती है, सरोकार नहीं बदलते। समाज नहीं बदलता एक क्षण में। समाज के सरोकार जीवित रहते हैं, शाश्वत रहते हैं। उसके लिए किसी को खड़ा रहना पड़ता है। किसी एक पार्टी की ये बात नहीं है, किसी एक सिंबल की ये बात नहीं है। जिन लोगों ने ये सोचा 1948 में ऑर्गेनाइजर पांचजन्य, इन सब की स्थापना हुई, कुछ और भी प्रयोग हुए। विज्ञापन की तरफ नहीं झुकेंगे, सरकार की तरफ नहीं झुकेंगे, मगर जो समाज कहेगा उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। ये मुझे लगता है ऑर्गेनाइजर पांचजन्य की ही बात नहीं है, ये वो बात है जो इस देश के मीडिया को याद रखनी थी, मगर वो उससे विमुख हुआ। विमुख होने का भी अगर हम कारण उसका एनालाइज करें, विश्लेषण करें, तो पता चलता है कि एक क्षण में ऐसा नहीं हुआ। न्यूज रूम में ऐसे लोग आए कहां से, जो भारत माता की जय को ललकारते हैं, जो वंदे मातरम को ललकारते हैं, जो इस देश की विविधता को फॉल्ट लाइंस की पॉलिटिक्स पर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, वो लोग आए कहां से। तो एक बड़ा क्षण मिलता है 1975 76, जो आपातकाल इस देश पर थोपा गया। उस समय पर आप देखिए कि सरकार ने, सत्ता ने इस पत्रकारिता पर चाबुक चलाया। सब एडिटर नहीं, सब इंस्पेक्टर बताएगा कि आपकी खबर की हेडिंग क्या होगी। सरकार ये चाहती है। एक कमिटेड जुडिशरी की बात होने लगी, मुकदमे चलाए गए लोगों पर। मगर उसके बाद सरकार तो पलट दी। उस समय जो पैदा हुआ मीडिया का आक्रोश था, जिसे सत्ता ने कुचला था, वो सत्ता विरोधी रुझान के तौर पर स्थायी उसकी परिणति हो गई, ऐसा दिखने लगा। न्यूज रूम में एंटी स्टैब्लिशमेंट है, वही खबर है, वही फ्लायर है, वही बैनर है। ये इस चीज को बढ़ावा देने वाले तत्व न्यूज रूम में आ गए। फिर आप देखिए, फिर चाहे अर्बन माओइज्म की बात हो, विविधता को विभाजन समझने की बात हो, कि नहीं, ये जो आदिवासी जैसा शब्द है, आदिवासी का अर्थ क्या होता है कि मतलब इनका आदिवास है, ये पहले से रह रहे हैं, आप बाद में आए। ये थ्योरी कौन लेकर आया? ऐसे ही लोग लेकर आए जिन्होंने कहा कि आर्य बाहर से आए थे। मीडिया में ऐसे तत्वों को जगह मिली, और नेशनल डिस्कोर्स आपने जो कहा वो इसी तरफ हो गया कि आर्य बाहर से आए थे। हमें समझना चाहिए, और खासकर इन बच्चों को समझना चाहिए कि सवाल उठाना सीखो। इस पत्रकारिता से भी सवाल उठाना सीखो। जब ये कहते हैं, पढ़ाते हैं, रोमिला थापर, इरफान हबीब जब कहते हैं आर्य बाहर से आए, तो इसके पीछे कहानी क्या है? आप पढ़ाते हैं कि आर्य बाहर से आए, सारी एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ाते हैं। कोई देश दुनिया में ये पढ़ाता है कि आर्य हमारे यहां से गए? अगर कहीं से गए नहीं थे तो आपके यहां आए कहां से? क्या मंगल ग्रह से आए? क्लासरूम में अपने पढ़ाते हुए टीचर से पूछिए ये सवाल। और अब अगर बच्चे सवाल नहीं पूछेंगे तो मुझे लगता है कि ये सिलेबस भी ठीक नहीं होगा। और एक किताब है, खासतौर से मैं उल्लेख करूंगा, नीरज अत्री ने इन सब का एक एनालिसिस किया है, अच्छा, ब्रेन वॉश रिपब्लिक के नाम से किताब। उसमें बताया है कि पाठ्य पुस्तकों में कैसे गड़बड़ियां परोसी गई, जो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। मीडिया में उसको सपोर्ट करने वाले तत्व थे। तो एक विभाजनकारी एजेंडा था, वो सारी जगह पर बढ़ाया गया। और खासकर उसमें जब देखते हैं आर्य की थ्योरी जो थी, जो फेक न्यूज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकती है, ऐसी थ्योरी बच्चों को पढ़ाई गई। उसका मूल समझना चाहिए बच्चों को। क्यों पढ़ाई गई? ये अंग्रेजों के समय गढ़ी हुई थ्योरी थी। उनका कहना था कि हाँ, आर्य बाहर से आए, हम भी बाहर से आए हैं। उनकी आंखें नीली थी, हाँ, हमारी भी आंखें नीली हैं। उनकी नाक तीखी थी, हमारी भी नाक तीखी है। उन्होंने तुम पर राज किया, इसमें कोई नई बात नहीं है, इसलिए हमें भी तुम पर राज करने दो, कोई नई बात नहीं है, तुम दास हो। ये बात पढ़ाने के लिए आर्य थ्योरी लेकर आए गए। तो मेरा कहना है कि जब तक जो जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए, सामाजिक विमर्श के लिए नई पुरानी दोनों पीढ़ी मिलकर खड़ी नहीं होती, तो नई चीजों का आधार, उनकी नींव रखना सरल नहीं होता। आज इतना बड़ा नेटवर्क है, उसमें सभी बच्चों से मैं कहूंगा कि थोड़ा मुखर हो। ये सवाल क्लास में टीचर से पूछो, मीडिया डिस्कोर्स में ट्विटर पर पूछो, फेसबुक पर पूछो, ये बहुत सारे सवाल हैं। और जो हमने मीडिया में झूठ बोलने की आदत का एक जिक्र किया, मैं कुछ उदाहरण जरूर देना चाहूंगा। ये तो सत्य की नाव थी, जिसे जाना था, चलना था। मगर सत्य की नाव पर अगर झूठ के सौदागर सवार हो जाएं तो क्या होता है? इस देश का एक बहुत बड़ा पत्रकार, वो टाइम मैगजीन के कवर का फर्जी ट्वीट करता है। जिस समय अमेरिका के इलेक्शन हो रहे होते हैं, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति का फोटो लगा हुआ है और लिखा हुआ है टाइम टू गो, जैसी टाइम की कोई खबर ही नहीं है, मगर एनडीटीवी के बड़े पत्रकार उसको ट्वीट करते हैं। दिल्ली में हुल्लड़बाजी हो रही है, उस समय एक हुल्लड़बाज जो ट्रैक्टर से स्टंट कर रहा है, वो उसका एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना में उसकी जान जाती है। बड़े सुनामधन्य मठाधीश पत्रकार हैं, वो बताते हैं कि नहीं जी, ये तो
पुलिस की गोली लगने के कारण ऐसा हुआ। और ऐसा नहीं कि ये उनसे एक आध बार हुआ हो, पहले एक शैक्षिक संस्थान में उन्होंने झूठ बोला था, बीएचयू में झूठ बोला था, बीएचयू के वीसी प्रधानमंत्री की रैली में शामिल है, ऐसा झूठ उन्होंने ट्विटर पर बोला था। उसके बाद उनको माफी मांगनी पड़ी, इस बार उनको दुत्कार पड़ी। तीसरे कुछ और लोग थे जिन्होंने राष्ट्रपति भवन को ही निशाना बनाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जब वहां तैल चित्र लगा तो कि नहीं, ये नेताजी का नहीं है, ये तो उनका अभिनय करने वाले अभिनेता का तैल चित्र बना दिया। खंडन किसको करना पड़ा इस बात का? नेताजी के जो प्रपौत्र थे चंदन बसु, उन्होंने बताया नहीं ये फोटो मैंने दिया है। ऐसे झूठ बोलने वाले लोग वो उस नाव में सवार हो गए जो सच की नाव थी, तो ये नाव कहां चलेगी? मेरा कहना है और खासतौर से ये नाव इसलिए भी चल रही है क्योंकि सोशल मीडिया जैसी एक ताकत खड़ी हो गई है। नई पीढ़ी 100 करोड़ के चैनल को आईना दिखाने के लिए आज 4000 का मोबाइल काफी होता है। और ये एक दिन में बदलाव नहीं हुआ। पहली जो मीडिया, एक समय अखबार बिकता था, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, हर भाषा में आवाज यही लगती थी। मगर उस समय ताजा खबर किसके पास होती थी? अखबार के पास होती थी। बाद में चैनल आए, उन्होंने कहा खबर, अखबार तो बासी हो जाता है, हमारे पास सबसे पहले खबर है, हम सबसे तेज हैं। ये हम सबसे तेज की जो हड़बड़ी थी, उसमें हमने बहुत सारे प्रयोग देखे, गफलतें देखी, चूक देखी, और उसमें कभी स्वर्ग की सीढ़ी, कभी कुंजीलाल, कभी सांप बिच्छू, ऑडियो कम क्यों आ रहा है? मेरे भी कम आ रहा है। मीडिया नहीं है, मीडिया को तकनीक ने उससे आगे लेकर चला गया। और मृत्यु का समाचार आया अमेरिकी ऑपरेशन में, दुनिया के सबसे दुर्दांत आतंकवादी की जब, तो किसी मीडिया, किसी सबसे तेज, किसी आज की ताजा खबर, किसी के पास ये खबर नहीं थी। ये खबर एक व्यक्ति ने एबटाबाद के पास, उसने ब्लैकबेरी मैसेंजर से दी कि मैंने अपने आसमान में कुछ घड़घड़ाहट सुनी है, शायद कुछ हुआ है। अंदेशा ये कहां से आया था? एक ब्लैकबेरी मैसेंजर से आया था। उस समय मोबाइल ने ये ताकत छीन ली थी। ये मीडिया को रियलाइज करने का समय था कि अब ब्रेकिंग न्यूज की हड़बड़ी हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए विश्लेषण और विश्वसनीयता, सच क्या है वो बताना हमारा कर्तव्य है। तो जो ट्रैक्टर के हुल्लड़बाजों को बताते हैं, वो शायद आज भी इस भ्रम में जी रहे हैं कि खबरें वही ब्रेक करते हैं। वो दौर चला गया कि जब पत्रकार सत्ता के नजदीक होते थे और जनता के जूते पड़े मगर हमें पद्मश्री मिले, ऐसे पत्रकारों का दौर चला गया। ये बच्चों को बताना चाहिए और ये उन पर सवाल भी उठाने चाहिए। पत्रकारिता का काम आज विश्वसनीयता का है, विश्लेषण का है, विवेचन का है, तुलनाओं का है, तर्कों का है, तथ्यों का है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए पांचजन्य ने एक नई पहल की, जो देश का सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान है आईआईएमसी, वहां के बच्चों को साथ लेकर, बड़े बड़े पत्रकारों ने जो झूठ बोले होंगे, वो फेक न्यूज क्या है, उसका खुलासा इन बच्चों ने किया। तो ऐसे बच्चों को प्लेटफॉर्म देने का भी एक माध्यम पांचजन्य है। अंत में मैं जो बात कहूंगा वो ये भी कहूंगा, समय मेरा पूरा हुआ है, तो कि ये जो मैंने शुरू किया था, अपनी भाषा में सोचना, ये बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा, सुनेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। वो सुनना, पढ़ना, लिखना, बढ़ना आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। आप जिस भाषा में सोचते हो, जिस भाषा में सोते हो, सपने देखते हो, चोट लगने पे रोते हो, गिनती गिनते हो, पहाड़े गिनते हो, गुस्सा आए तो आपके मुंह से आवाज निकलती है, वो जो भाषा है, जो गाली की भी हो सकती है, सपनों की भी हो सकती है, पहाड़ों की भी हो सकती है, माँ को याद करने की भी हो सकती है, वो भाषा आपके स्मरण की है, जिससे इस देश का विमर्श ठीक होगा, जिससे इस देश के मीडिया पर सवाल खड़े होंगे, जिससे आपका पाठ्यक्रम ठीक होगा। अपनी भाषा में सोचो, अपनी भाषा में पढ़ो। और मैं कहूंगा कि थोड़ा सा जो जिज्ञासा के साथ आक्रामकता है, वो इस समाज का स्वभाव रहा है, विमर्श की परंपरा रही है। बच्चों में वो आए, पांचजन्य पढ़ें। इसके उल्लेख के साथ ही मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद वीरेंद्र जी, धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you for kind words and very inspiring words. And actually, we're in mind that कि खाली फेक न्यूज ही है, लेकिन यहाँ तो फेक करिकुलम ही है। तो मुझे लगता है कि जो लोग फेक करिकुलम पढ़ के आए हैं, वही शायद फेक न्यूज बनाते होंगे या फैलाते होंगे। तो वहाँ पर शुद्धिकरण की जरूरत है। आई एम श्योर दैट कि मॉडर्न इंडिया विल प्यूरिफाई देम एंड उनका पूरा बॉडी, माइंड एंड सोल, आत्मा और बुद्धि और दिमाग को सबको शुद्ध करके डिटॉक्स करेगा, ताकि अच्छे विचार आए और हमारी भारत की जो महानता है, जो भारत की परंपरा है, उसको दुनिया तक पहुंचाए।
एंड भारत को, दुनिया को आज भारत की ज्यादा जरूरत है, भारत को दुनिया की कम जरूरत है। क्लाइमेट चेंज से भारत के संस्कार ही पूरी दुनिया को बचा सकते हैं, और यूनाइटेड नेशन ने उसी परंपरा को अपने एसडीजी, जो 17 एसडीजी है, उसके माध्यम से दुनिया के सामने रखा है। ये 17 एसडीजी भारत की संस्कारों का ही एक